إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه وتعالى حاكيا قوله عليه الصلاة والسلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس قفوا عند مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآية. برادران اسلام، دلی اور دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی، ان کا اسوہ، ان کی پوری سیرت اور تاریخ قرآن کریم کی آیات میں ڈھلی ہوئی ہے. قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں کئی جگہوں پر اللہ عز و جل نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، ان کی سیرت کا، ان کی دعوت کا، ان کی جہاد کا، ان کی شجاعت کا، بہادری کا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ سب باتیں اتنی لمبی ہیں کہ کتابیں درکار ہیں، اس کے لیے مہینے اور سال درکار ہیں. قرآن کریم کی صورتوں میں سورۃ الانعام آپ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت جلی طور پر آپ کو ملے. کس طرح سے اپنی قوم سے، وقت کی حکومت سے انہوں نے مناظرے کیے اور توحید کے پیغام کو انہوں نے عام کیا. اسی طرح سے سورۃ الشعراء پڑھیں، سورۃ الانبیاء پڑھیں، سورۃ الصافات پڑھیں. ان سورتوں کے اندر آپ کو تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا. پھر مستقل سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورہ ابراہیم، اس میں تو تذکرہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا اچھی طرح سے اللہ عز و جل نے تفصیل سے بیان فرمایا. تو الغرض عمومی طور پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہی خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے خلیل ہیں ہمارے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے نبی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہی خلیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل نہایت ہی گہرا دوست، حد درجہ محبوب جو ہوتا ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے. محبت دل میں پیوست ہو جائے، دل کے رگ و ریشے میں داخل ہو جائے تو ویسی محبت کو خلت کہا جاتا ہے اور ویسے محبوب کو خلیل کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جگری بنایا، خلیل بنایا. ایسے ہی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا. تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کے اسوے کو، ان کی ملت کی پیروی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، اپنے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس خلیل کی ملت کی پیروی کیجیے. ابراہیم الخلیل کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الخلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل نے ایک سے زائد آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کو خبر دی ہے، ہم نے آپ کو کہا ہے کہ
आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। वो इब्राहीम जो हनीफ थे, तमाम माबूदान बातिला से किनारा कशी करके, बाइकाट करके, रिश्ता काट करके सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ आने वाले, और इसके लिए अपनी जान की, माल की, औलाद की, और बाप से दुश्मनी, कौम से दुश्मनी, तमाम लोगों से दुश्मनी और इनाद मोल लेकर आखिरी मरहले में अल्लाह तबारक व तआला यानी सबको छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को अपना माबूद हकीकी बनाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, आपकी सीरत में कई एक पहलू बड़े अजीमुश्शान है, कई एक पहलू, लेकिन आपकी सीरत का जो सबसे अजीमुश्शान पहलू है वो आपकी दावत तौहीद है। और मुझे थोड़ी देर जो गुफ्तगू करनी है आज के इस खुतबे जुमा में, वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का जिक्र करना है। और इसी मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करनी है। हमारे आपके इस माहौल में, हम जिस मुल्क में, वतन में रहते हैं, या दुनिया के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात पर जो लोगों के तज्जिए हैं, तबसरे हैं, इस माने में कि हालात बदलेंगे कैसे, लोगों के हालात सुधरेंगे कैसे, मुसलमानों की जिल्लत है, पस्ती है, और इन्हें लोग दुनिया के ममालिक और दुनिया की ताकतें जहां जब जैसे चाहती हैं उन्हें कुचल देती हैं, मसल देती हैं और उनकी जिंदगी को अजीरन कर देती हैं। इस नाजुक सूरत हाल की जो उम्मत की हालत है, इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या, इसका हल क्या है, इस बारे में लोग बड़े तबसरे करते हैं, बड़ी गुफ्तगू करते हैं, और लोग अपना अपना नजरिया, अपनी राय पेश करते हैं कि हल क्या है उम्मत के इस मसले। तो कोई कहता मुसलमानों की सियासी ताकत नहीं है इसलिए मुसलमान जलील है, खार है। कोई कहता मुसलमानों की मादी और माशी ताकत नहीं है, ये बहुत माली तौर पर कमजोर हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास जिंदगी के असबाब और वसाइल नहीं है, इनके पास कॉर्पोरेट लेवल की कंपनियां और इनके पास बड़े बड़े इनकम के सोर्सेज नहीं है, इसलिए क्योंकि माली तौर पर कमजोर है इसलिए ये लोग जलील हैं। कोई कहता है इनके पास दुनिया की जो तालीम और आला किस्म की डिग्रियां हैं ये नहीं है इनके पास, इसलिए ये जलील हैं, ये खार हैं। इस तरह के बहुत सारे तजज़ीब, बहुत सारे तबसरे लोग करते हैं, लेकिन असल में ये नहीं हम जानते कि असल में जिल्लत की वजह क्या है, पस्ती की वजह क्या है। अगर कोई कौम जलील होती है तो क्यों होती है? किसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत और शान और शौकत से नवाजता है तो क्यों नवाजता है, कैसे नवाजता है? कोई कौम कब तक जलील रहती है और कब इज्जत और शान और शौकत में आती है, कब उसे शान और शौकत मैसर होती है, ये सब असल में जानने की जरूरत है। ताकत, अच्छा बाद लोग कहते हैं कि हमारी तादाद कम है, हमारी तादाद कम है तो हम जलील ही रहे, हमारा परसेंटेज इतना है, हमारा फीसद इतना है, हमारी गिनती इतनी, इसलिए हमारी हालत है। हम अपने माजी को 1400 साल तारीख इस्लाम की जो उसे भी भूल जाते हैं, और पूरी इंसानियत की तारीख, क्योंकि हम तो आखिरी मताफ पर आए हैं, यानी आखिरी उम्मत है, आखिरी नबी की उम्मत है, और उम्मत की इस इंसानियत के नाम आखिरी किताब कुरान करीम की उम्मत है। मेरे भाइयों, हम अपनी तारीख 1400 साल, 14.5 साल की तारीख अगर हम न समझें, और फिर उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख तो लंबी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से रिसालत की, यानी पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम बना करके भेजे गए, और फिर सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला कहाँ खत्म हुआ? हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर, आपकी रिसालत पर। तो पूरी तारीख में क्या ये चीज हमें कहीं देखने को मिलती है कि मुसलमान जलील हुए, इसलिए जलील हुए कि उनके पास माल नहीं है, उनके पास सियासी ताकत नहीं है, उनके पास सियासी बसीरत नहीं है, उनके पास मिसाल के तौर पर दुनिया की तालीम और दुनिया की डिग्रियां नहीं है, उनकी तादाद कम है, उनकी गिनती कम है वगैरह? क्या इस तरह के असबाब और वसाइल कहीं नजर आए? जब हम इज्जत और शान और शौकत में थे तो हमारी तादाद कितनी थी, और जब हम जलील रहे तो क्या हम इसीलिए जलील रहे कि हमारी तादाद कम हो गई, हमारे पास माल कम था इसलिए हम जलील हो गए? आखिर क्या वजूहात हैं? एक मुसलमान अगर बसीरत की नजर से न देखे तो दुनिया में कौन है जो बसीरत की नजर से देखेगा? हम दुनियादाराना नजरिया, दुनियादाराना सोच और दुनियादाराना अफकार और इस तरह की चीजों की बुनियाद पर इस तरह की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, ये ईमान, ये इस्लाम, ये तौहीद, ये इखलास इबादत और बंदगी, ये रिश्ता हमारा और आपका अल्लाह तबारक व तआला से बुनियादी रिश्ता है। ये रिश्ता बंदगी का अगर कमजोर हुआ तो जिल्लत वहीं से आती है, इज्जत वहीं से मिलती है, शान और शौकत वहीं से मिलती है, पसवाई और पस्ती वहीं से हासिल होती है। हमारी और आपकी जो सोच है वो सोच कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में
और इंसानियत की अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की तारीख की रोशनी में ढलनी चाहिए, बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी और आपकी जो सोच है वो बहुत महदूद सोच हो और बहुत ही छोटी सोच हो, बहुत ही हकीर सोच हो, दुनियादाराना सोच हो, मादा परस्ताना सोच हो, और जो नजरियात, बातिल नजरियात दुनिया के अंदर पैदा हुए, उस तरह के रासमाली नजरिया, मादी नजरिया, सियासी नजरिया, इस तरह के नजरियात पर हमारे और आपके, मेरे भाइयों, फैसले नहीं होने चाहिए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम समझें ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, कायनात अल्लाह की मखलूक है और हम सब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो किया है वो अपनी तौहीद को दुनिया में बपा करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला की तन्हा इबादत हो इसे दुनिया में आम करने के लिए पैदा किया है। इसी के लिए अंबिया भेजे, इसी के लिए रसूल भेजे गए, इसी के लिए नूह अलैहिस्सलाम आए, इसी के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, इसी के लिए मूसा और ईसा आए, और इसी के लिए हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में नबी और रसूल बना करके भेजे गए। तो खुलासे कलाम ये है कि हमारी और आपकी जो सोच हो कैसी हो कि हम ईमानी अंदाज में सोचें, मोमिनाना सोच सोचें। एक मोमिन की सोच जो होती वैसी सोचें। जब वैसा सोचेंगे तो अपनी हालत जार पर भी नजर डालेंगे, अपने किरदार का भी जायजा लेंगे, अपना भी मुहासबा करेंगे। हमारा ईमान कैसा है, हमारी तौहीद कैसी है, हमारे फराइज कैसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का मामला हमारे साथ कैसा है, हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में इखलास है कि रखते हैं कि नहीं रखते, हमारी जिंदगी में शिर्क तो नहीं है, हमारी जिंदगी में कुफ्र तो नहीं है, अल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी में बिदात और हवा परस्ती, नफ्स परस्ती, दुनियादारी और मादियत तो नहीं है, कानूनियत और फिरौनियत ही को तो हमने अपना दीन नहीं बना रखा है। यही तरक्की का राज है, यही अजमत का राज है, ऐसा तो नहीं हमने सोच रखा है। ये बहुत बुनियादी मसला। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके सामने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं बहुत मुख्तसर ही करूंगा क्योंकि वक्त कम रहता है। मैं सिर्फ ये इशारा करना चाहता हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपकी दावत तौहीद सबसे ज्यादा जली और नुमाया है। जो चीज आपको उनकी जिंदगी में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद उस पैमाने पर, उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर आखिरी नबी हमारे और आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कहा आप अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत क्या है? दीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें। मिल्लत इनके दीन का माना ईमान, अकीदा, तौहीद है। मिल्लत के माने अरबी जबान में कई होते हैं, लेकिन जहां ये मिल्लत इब्राहिम का जिक्र आया है उससे मुराद क्या है? उससे मुराद हनीफियत है। मिल्लत हनीफियत यानी सबसे रिश्ता काट कर मेरे भाइयों, जितने भी गैरुल्लाह हैं सबसे रिश्ता तोड़ करके, बरात का, बेजारी का, बाइकाट का ऐलान करके एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी का ऐलान, ये है मिल्लत हनीफियत, और इसी का नाम है मिल्लत इब्राहिमी। मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी का हुक्म दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। और हम सब जानते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया कि आप मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी कीजिए, तो हम उम्मत के एक एक फर्द के लिए भी वो हुक्म हो गया कि हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें, है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद आप कुरान करीम में देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मती मुहम्मद को फरमाता है अनित्तबिउ मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। यानी तुम उम्मती मुहम्मद के लोगों, तुम्हें चाहिए कि तुम मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो। आप सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या मुनासबत है, क्या मुनासबत है? इसलिए हमें और आपको ये भी जानने की जरूरत है कि बड़ी मुनासबत है, क्योंकि तौहीद की दावत का जो मिशन जितने अजीम अंदाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किया और हर तरह के लोगों के सामने पेश किया, मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद सबसे पहले अपने वालिद के लिए, अपने बाप आज़र के लिए, फिर अपनी कौम के लिए, फिर वक्त की हुकूमत के सामने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत पेश की। और कितनी सराहत के साथ, कितनी जुरत के साथ, कितनी शुजाअत और बहादुरी के साथ पेश की, कितनी सराहत के साथ पेश की। तो तादाद का मसला नहीं है, तादाद का मसला नहीं है। तादाद कम है तो क्या हुआ? हमारा ईमान, हमारी तौहीद बहुत ठोस होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा खरी होनी चाहिए, बहुत ही खालिस होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से बढ़ करके हमारे पास कोई नेमत दौलत नहीं है। मेरे भाइयों, आइए मुख्तसर बात करके बात खत्म करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी खलील अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफ की, क्या कहा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मह कानितन हनीफन लिल्लाहि व लम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करने वाले हैं। हम जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी खुसूसियात हैं, आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीजों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया, तमाम आजमाइशों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम खरे और कामयाब होकर के निकले। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीजों में आजमाया, सब में वो तमाम और कमाल के साथ बाहर निकले और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इमामत और पेशवाई अता फरमा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया आपको एक उम्मत बनाए। उम्मत थे, उम्मत किसे कहते हैं? उम्मत तो बड़ी जमात को कहते हैं, तादाद को कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्मत थे, उम्मत थे। अकेला आदमी अगर हक पर कायम हो तो उम्मत कहलाता है, अकेला भी आदमी तौहीद पर कायम हो तो जमात कहलाता है। भीड़ का नाम जमात नहीं है, भीड़ का नाम उम्मत नहीं है। अगर सारी बड़ी तादाद अगर शिरक कर रही है, कब्रों और मज़ारों का चक्कर लगा रही है, अपने सरों को आस्तानों पर टेक रही है, तो क्या ये बड़ी तादाद है इसलिए इसको उम्मत कहा जाएगा? नहीं, उम्मत वो नहीं है, जमात वो नहीं है जो भीड़ हो। जमात वो है जो हक पर कायम हो, जो तौहीद पर है वो जमात है, जो सुन्नत पर है वो जमात है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर कायम है वो उम्मत है, जो तमाम बिदअतों से निकलकर बिदअतियों से बाइकाट करके तन्हा सुन्नत पर कायम हो उम्मत है, जमात। ये हमारी और आपकी सोच होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि उम्मतन कानितन, कानित थे। कानित कुनूत किसे कहते हैं? कानित के कई माने हैं। इसका माने क्या? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करने वाले, फरमा बरदारी करने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले उम्मत थे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटने वाले, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले, अल्लाह के हुक्म पर झुक जाने वाले। बहरहाल मैं असल गुफ्तगू जो करना चाह रहा हूँ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद। आप सरसरी तौर पर अगर देखें तो तीन पहलू हैं, वालिदे मोहतरम को अपने, और ऐसे ही अपनी कौम को, और ऐसे ही वक्त की हुकूमत और बादशाहत को उन्होंने तौहीद की दावत पेश की। वालिद को देखे, इस खाला इब्राहिम लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को से कहा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या आप तराशते हैं बुत और उन्हें माबूद बना लेते हैं? इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिन मुबीन, मैं आपको और आपकी कौम को सबको खुली गुमराही में देख रहा हूं। बाप से इतनी बात ऐलानिया कह रहे हैं कि आप बुतों को तराशते हैं और उन्हें माबूद बनाते हैं। आप पत्थरों को तराशते हैं माबूद की हैसियत से, है कि नहीं? मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। नसीहत देखो, अब उसके बाद खुसूसी नसीहत बाप से कैसे पेश आते हैं याद रखें। इससे पता क्या चला? पता ये चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत तौहीद दे रहे हैं, शिर्क से मना कर रहे हैं, लेकिन बाप का जो पिदरी हक होता है, जो पिदरी मकाम होता है, उसे पामाल नहीं करना, क्योंकि बाप बेटे की पैदाइश का सबब बना है, इसलिए वो अदब, वो एहतराम तो कायम रहेगा। बदसलूकी, बदज़बानी और मामले की बुराई, बदसलीकापन ये तो नहीं आएगा कभी भी, लेकिन हक की बात पेश की जाएगी, बातिल को बातिल कहा जाएगा, हक की दावत दी जाएगी, बातिल से मना किया जाएगा, हक में साथ दिया जाएगा और बातिल में साथ नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसको नाफरमानी कहते हैं, बदसलूकी कहते हैं। हुस्न सलूक के मुकाबिल में जो बदसलूकी होती है वो बाप के साथ, माँ के साथ नहीं की जाएगी, चाहे माँ बाप मुशरिक ही क्यों ना हो, चाहे माँ बाप मुशरिक ही क्यों ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरह मरियम में इस बात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, या अभी जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे ही या अभी की तरह से अरबी ग्रामर में ता भी लगती है, या अबती, ए मेरे अब्बा जान। क्या फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ए मेरे अब्बा जान, आप आखिर ऐसे बुतों को, ऐसे माबूदों को बातिल क्यों पूजते हैं? क्यों आप पूछते हैं? मा ला यस्मा, जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना आपके कुछ काम आ सकते हैं, है कि नहीं? देखा आप, ये दो दावत का अंदाज देखो, बाप के साथ शफकत, लेकिन जिनकी पूजा हो रही है उनकी कमजोरियों को बयान करके,
उनकी हकारत को बयान करके, उनकी बेबसी को बयान करके, उसकी नकारत को बयान करके वादे कर रहे हैं ये कैसे माबूद हो सकते हैं, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो आपके कुछ काम नहीं आ सकता, आप ऐसे की पूजा क्यों करते हैं। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ दावत। तो दावत अपने बाप को दी और तफसील लंबी सारी बात आगे क्या फरमाया, या अबती ला ताबुदी शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, ए अब्बा जान आप शैतान की पूजा मत कीजिए, शैतान की इबादत मत कीजिए। तो अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत होती है और उनसे राजी होते हैं इबादत किए जाने वाले, वो शैतान कहलाते हैं। तागूत वज्तनिबु तागूत, तागूत से बचो, ठीक। तो शैतान की परस्तिश मत कीजिए, इसलिए कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का जमाने से रहमान सुब्हानहू व तआला का नाफरमान रहा, क्यों आप इसकी पूजा करते हैं। और उसके बाद बड़ी अजीम शान बात कही थी, क्या कहा था मालूम है, या अबती, ए अब्बा जान इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, ए अब्बा जान मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। मुझे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई है, मुझे अल्लाह ने वही का इल्म अता फरमाया, उस इल्म की रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो इल्म आपके पास नहीं है, आप बाप जरूर हैं, लेकिन वो इल्म मेरे पास है, आपके पास नहीं है। मेरे पास वो इल्म आया है मालम याती का, जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिअनी, इसलिए आप मेरी पैरवी कीजिए, अहदी का सिरातन सविय्या, मैं आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई कर रहा हूँ। इस तरह से नसीहत करते रहे। बहरहाल जब बाप ने सख्त रवैया अख्तियार किया, सख्त रवैया, इब्राहिम चले जाओ, लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नक, अगर तुम बात नहीं आ गए, मुझे दावत दे रहे हो एक अल्लाह की इबादत करने की और इन तमाम माबूदों की बुराइयां कर रहे हो, ये कुछ नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, काम नहीं आ सकते, नफा नुकसान की मालिक नहीं है, इनकी बुराइयां कर रहे हो और एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हो, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, अगर तुम बात नहीं आ गई इससे तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार के खत्म कर दूंगा। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, कोई बात नहीं अब्बा जान, सलामती हो आप पर, अब मैं आपसे मैं बदज़बानी नहीं कर सकता, आपका अदब एहतराम पामाल नहीं कर सकता, सलामती हो आपके ऊपर, मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर बड़ा मेहरबान है। लेकिन आपको मालूम है ना, ये उस वक्त की थी उन्होंने जब अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मना किया गया था कि मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं हो सकती है। उसके बाद कुरान करीम उसका तज़किरा है, फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वु लिल्लाह तबर्रअ मिन, जब अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ वाज़ेह तौर पर पता चल गया, वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह के दुश्मन हैं, तो उनसे बरात का इज़हार करके बरात का ऐलान कर लिया, बाइकाट का ऐलान कर लिया, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल मेरे भाई, बाप इब्राहिम, क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसानों जिन्नात सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। उस वक्त क्या मंजर होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने बाप आज़र से हो जाए, आज़र को देखेंगे, वअला वजहिही गबरतुन व क़तरा, उनके चेहरे के ऊपर धूल मिट्टी मायूसी सियाही छाई हुई होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे देखेंगे अपने बाप से मुलाकात होगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अबती अलम अकुल लक ला तासीनी, अब्बा क्या मैंने आपसे नहीं कहा था दुनिया में कि मेरी बात मान लीजिए, मेरी नफरमानी मत कीजिए, अल्लाह का नबी हूं, पैगंबर हूं, मुझे जो इल्म अल्लाह की तरफ से मिला वो आपको नहीं मिला, आप जो काम कर रहे थे वो शिर्क था, उसका अंजाम यही था जो आज होना है आपका, लेकिन मैं आपसे कह रहा था मेरी बात मान लीजिए, मेरी नफरमानी मत कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या कहेंगे, फल्यौम ला आसीका, तो ठीक है इब्राहिम, आज मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, आज आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात को मान लूंगा। लेकिन आप जानते हैं ना, अल-यौमा अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल, उमर बिन खत्ताब या अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने कहा था, आज दुनियावी जिंदगी के अंदर अमल है, हिसाब नहीं है, आखिरत में जब हम अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाएंगे तो हिसाब होगा, अमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज अमल करना है, आज हिसाब किताब का दिन नहीं है, क़यामत जब कायम हो जाएगी, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तो फिर अमल करने का मौका नहीं होगा, वहां हिसाब किताब देना होगा। तो अब तो अमल का मौका जा चुका है, अब तो अमल का मौका जा चुका है। अब क्या होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर भी उम्मीद में आ जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा था कि आपको ज़लील नहीं किया जाएगा, उन्होंने दुआ भी की, रब्बी ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, ए मेरे रब क़यामत के दिन तू मुझे रुसवा न करना, क़यामत के दिन तू मुझे रुसवा न करना। ए अल्लाह तबारक व तआला
क्या तूने मुझसे ये नहीं वादा किया था कि मुझे रुस्वा नहीं करेगा, रुस्वा नहीं करेगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तो कौन सी रुस्वाई है? आप रुस्वाई कौन सी है इब्राहिम? किस रुस्वाई की बात करो, कहां रुस्वाई है तुम्हारी? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे अय्यु खिज़्यिन अख़ज़ा मिन अबिल अबअद, अल्लाह तबारक व तआला इससे बड़ी रुस्वाई और क्या है मेरी कि मैं तो इब्राहिम हूँ, अल्लाह तेरा खलील हूँ और जन्नत मेरे लिए तूने बना रखी है, लेकिन मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार मेरा बाप है जो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इससे बड़ी रुस्वाई और क्या हो सकती? इब्राहिम सही बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया बयान फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाए? अल्लाह का जवाब जानते? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा या इब्राहिम इन्नी कद हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन। इब्राहिम ठीक है, जिल्लत की कोई बात नहीं, रुसवाई की कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक रही बात तुम्हारे बाप की जो जहन्नम में जाने वाले हैं, तो वो तो एक अलग फैसला है कि मैंने जन्नत काफिरों के लिए हराम कर दी। बाप है तो क्या हुआ, बाप है तो क्या हुआ, जहन्नम रसीद हो रहे तो क्या हुआ? उनके अपनी करतूत का नतीजा है वो। तुम्हारी जो पिदरी और पिसरी रिश्तेदारी है बाप और बेटे की, उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्नी कद हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैंने काफिरों के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, इसलिए नहीं जन्नत को नहीं पा सकते, इनका ठिकाना तो जहन्नम ही है। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा और वो देखेंगे अपने पैर की तरफ, तो अपने बाप को एक बहुत ज्यादा बदशक्ल और धूल मिट्टी और कीचड़ में लथपथ लकड़बग्घे की शक्ल में देखेंगे। उनकी वालिद की शक्ल क्या हो जाएगी? एक बहुत ज्यादा बालों वाला लकड़बग्घा जो मिट्टी में और कीचड़ में लथपथ पड़ा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा फरिश्तों को, इसके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को पकड़ करके इसे जहन्नम की आग में फेंक दो, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इनको जहन्नम की आग में फेंक दिया जाए। आजर, यह आजर बाप अल्लाह का जिगरी खलील है, लेकिन बाप शिर्क की वजह से जहन्नम रसीद हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फैसला अटल। तो बाप, यहां बात दिमन आ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को पहले क्या की? तौहीद की दावत। जाहिर सी बात, उसूल यही है ना मेरे भाई, उसूल यही है। वो अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, हम लोगों के लिए, हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया गया, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले आगाह कीजिए, जहन्नम से डराइए, शिर्क से आगाह कीजिए, शिर्क के अंजाम से आगाह कीजिए, तौहीद की दावत दीजिए, जन्नत कैसे मिलेगी उस रास्ते को बताइए, इसलिए कि पहले वो सबसे ज्यादा हकदार है। तो सबसे पहले हकदार पर अपनी जात की इस्लाह पहले नंबर पर, और उसके बाद अपने अइज़ा अक़ारिब, और उसमें सबसे करीबी रिश्ता क्या होता है मेरे भाइयों? माँ का बाप का रिश्ता होता है, बेटे और बेटी का रिश्ता होता है, और फिर उसके बाद सारे रिश्ते आगे बढ़ते। तो खुलासे कलाम ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद अपने बाप के लिए खुली दावत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अपनी कौम को दावत दी, कौम को दावत दी। कौम की दावत के बारे में तो काफी तफसीलात हैं, हमने शुरू में अर्ज किया, किताबें चाहिए और बयान करने के लिए महीने और साल चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी, अपने बाप से कहा, अपनी कौम से कहा, और वाकया मेरे भाइयों सूरह साफ़ात में, सूरतुल अंबिया में, और ऐसे ही दीगर सूरतों के अंदर, और खासतौर पर जो कौम के लोगों से मुनाजरा, यानी मुनाजरे के जरिए से कौम के सामने उनकी शिर्क को, उनकी बुतपरस्ती को बातिल करार दिया और एक अल्लाह की इबादत को हक करार दिया, इस बात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम में फरमाया है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाकया खास तौर पर जिक्र किया जाता है कुरान करीम में, और उसका अक्सर तज़किरा जब दावत तौहीद का होता है तो इसका तज़किरा होता है। वो क्या है? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो एक रिवायत के तौर पर मेले और इस तरह से है ना, गाने बजाने और रंग रलियों के लिए और पिकनिक के लिए जाया करती थी। कौम के लोग जाने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप भी चलिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम, उन्होंने सितारों की तरफ आग उठा करके देखा। ये उनकी कौम का तरीका था, उनकी कौम का तरीका था, कोई सितारों से कोई अकीदा नहीं लेते थे वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को आग की तरफ आग उठाया और उसके बाद फरमाया इन्नी सकीम, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूं। नबी अपनी मुशरिक कौम के दरमियान बीमार होता है, कुढ़ता है, परेशान होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हम कर रहे हैं, हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं ना कैसे बीमार रहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इतना बेचैन, मेरी कौम के लोग ईमान क्यों नहीं लाते, कुरान करीम पर ईमान क्यों नहीं लाते, इतना बेचैन कि ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ऊपर से कूद करके अपनी जान हिलाक कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दो जगह इस बात का जिक्र किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान न लाने की वजह से आप इतना परेशान हाल, इतना बेचैन होते हैं, इतनी उलझन महसूस करते हैं, इतना ज्यादा परेशान होते हैं, ऐसा लगता है कि आप अपनी जान हिलाक कर दें, अपनी जान हिलाक कर देंगे। तो इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, पूरा वाकया जिक्र किया गया। तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन, जाओ तुम मेले के लिए जा रहे हो ना, अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारी माबूदों के साथ, तुम्हारे बुतों के साथ वो चाल चलूंगा। अकीदन्ना क्या कहा था, मैं चाल चलूंगा। चाल इस माने में कि अगर इनके पास ताकत हो तो रोक के देख ले, इसका मुकाबला कर ले, इससे बचा ले जाए। बादान तुवल्लू मुदबिरीन, जब तुम चले जाओगे ना, वापस पीठ फेर के निकल जाओगे कौम से, चले जाओगे मेले में, तो मैं तुम्हारे बुतों का बड़ा बुरा हश्र करूंगा। और उसके बाद क्या है, फरागा इला आलिहतिहिम, उनके माबूदों की तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम माइल हुए और क्या कहा, अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून, तुम खाते क्यों नहीं हो, इतने चढ़ाए हुए क्यों नहीं खाते, इस जो तुम्हारे है ना दरबारियों ने चढ़ाया क्यों नहीं खाते, इस मा लकुम ला तंतिकून, बात क्यों नहीं करते। अल्लाह, ये है बेकसी बेबसी। अगर मुशरिक को इतनी बात समझ में अगर आ जाए तो क्यों अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी के सामने सर टेके। लेकिन अफसोस है, इसीलिए मुशरिक से ज्यादा बदअकल दुनिया में कोई नहीं होता। कितना भी टैलेंट उसके यहाँ हो, समझता हो कि मैं टैलेंट वाला हूं, लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत में अगर शिरक करता तो उससे ज्यादा बदअकल, उससे ज्यादा गबी और उससे ज्यादा कुंद ज़हन कोई नहीं, और मुवहिद से ज्यादा दुनिया में ज़हीन और अक्लमंद कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन होता है, जो ईमान वाला होता है, जिसे अपनी आखिरत की फिक्र होती है और अपने ईमान की इस्लाह की फिक्र करता है और अल्लाह ताला के सामने हिसाब व किताब के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो सबसे ज्यादा अक्लमंद और टैलेंट वाला ज़हीद ईमान वाला होता है। मेरे भाइयों, तो क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरागा, अल्लाहु अकबर, अलैहिम दरबन बिल यमीन, अपनी दाएं हाथ से उनके ऊपर टूट पड़े, यानी दाएं हाथ से मारना, तोड़ फोड़ करना शुरू कर। हाँ अच्छा, दूसरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत से इस बात का तज़किरा फरमाया, उसे जुज़ाज़न, चूरा चूरा कर दिया, तोड़ फोड़ के सारे बुतों को क्या कर दिया, चूरा कर। इल्ला कबीरन लहुम, उनका एक बड़ा था उसे छोड़ दिया, लअल्लहुम यरजून, ताकि कौम के लोग वापस आए तो इस बड़े वाले से पूछे, भाई क्या मामला है, ये छोटे वाले कहाँ चले गए, तुम क्या कर रहे थे, बताओ जरा, तुमने तो देखा होगा क्या क्या हुआ नहीं हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना काम कर दिया, कौम के लोग वापस आए, देख करके मंजर हैरान, मंजर देख करके ये क्या हो गए। उसके बाद अच्छा ये बताओ, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, जिसने भी हमारे बुतों के साथ ये दुर्गत की है यकीनन वो जालिमों में से है। अब चीख पुकार के साथ बाकी क्या बचा है, क्या बाकी बचा, बेचैनी, उलझन, चीख पुकार, शोर शराबा, जज्बातियत, इसके सिवा और क्या है। अच्छा सही, पूछो क्या मसला है, कौन हो सकता है जिसने ये काम किया हो, कौन हो सकता है जिसने ये काम किया हो। लोगों ने बात की, समेना फतन यज़कुरुहुम क़ाल लहू इब्राहिम, एक जवान को हम सुनते रहे कि वो इन बुतों का जिक्र करता है, ये सुनते नहीं है, ये देखते नहीं है, ये खाते नहीं है, ये बोलते नहीं है, ये नफा नहीं देते, नुकसान नहीं देते, किसी के काम नहीं आते, ये कैसे इबादत के लायक हो सकते हैं, क्यों इनकी पूजा करते हो। ऐसा तज़किरा करता है एक नौजवान, युक़ाल लहू इब्राहिम, इसका नाम क्या है, इसका नाम इब्राहिम है। तो तौहीद का दाई जाना जाता है कि तौहीद का दाई है, और तौहीद परस्त भी जानते हैं और मुशरिक भी जानता है कि कौन है तौहीद का दाई। आज लोग पूछते हैं फला की तकरीर सुने कि न सुने, फला का लेक्चर सुने कि न सुने, इनसे इल्म ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये जुमले उन्हीं लोगों के, नौजवानों के,
फला से इल्म ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इनके बारे में जरा बताइए, इनका अकीदा कैसा, इनका मनहज कैसा, इनकी सुन्नत कैसी, इनका सहाबे किराम के उसवे पर ये है कि नहीं है। भाई जो अपने अकीदे और मनहज का सच्चा अलमबरदार होगा वो जाना जाएगा, दुनिया जानेगी कि कौन हक बोलने वाला है, कौन तौहीद का अलमबरदार है, कौन चुप बैठता है, कौन मसलहत का नाम लेता है, कौन रवादारी के नाम पर समझौते करता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम है। मुशरिकीन जानते हैं, कौम के लोग जानते हैं। एक नौजवान है जो हमेशा इन बुतों का जिक्र करता है और शिर्क के खिलाफ हमेशा बात करता रहता है। चलो भाई पकड़ो, बात करो उससे। और क्या कहा था मालूम है? हाँ, उसे लाओ लोगों की निगाहों के सामने ताकि लोग देखें कौन है वो नौजवान। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा, फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून बल फ़अलहु कबीरुहुम फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अरे ये जो सब कुछ हुआ है ये तुम्हारे बड़े ने किया है, तुम्हारे बड़े ने किया है, अगर ये बोलते हो तो पूछो इनसे। देखा आपने, दावत, हर तरह की दावत, गए तो ये करतूत, ये रवैया, और आए तो फिर दावत, अगर बात करते हैं तो पूछ के देख लो। अल्लाह अकबर। वो सब बातें बहुत वाज़ेह हैं और हम तो अपने बच्चों को बचपन से समझाते रहे, बताते रहे, हम बचपन से पढ़ते रहे, हम सब जानते हैं। बहुत वाज़ेह है दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के सामने। उसके बाद क्या बाकी बचा? कुछ नहीं। हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम। अरे इस बच्चे को, नौजवान को जलाओ, इसे आग के हवाले कर दो और अपने माबूदों की मदद करो। अल्लाह अकबर। माबूद मदद करता है या करना पड़ता है उसकी मदद? कब्रों को संवारना पड़ता है कि कब्र आपके हमारे काम आती है? कब्र वाला हमारे काम आता है कि उसकी कब्र की मिट्टी संवारने का काम लोग जा करके करते हैं। मेरे भाइयों, माबूद को मदद की जरूरत नहीं होती, माबूद हकीकी मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला फनिअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतरीन कारसाज है और सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। यहाँ मुशरिकीन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपने माबूदों की मदद करो और इस जालिम को, जिसने हमारे बुतों के साथ, हमारे माबूदों के साथ सलूक किया है, इसे आपके अलाव में जला दो। फिर पूरा वाक़या आपको मालूम है क्या क्या हुआ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया गया। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में सब है। आग जलाती इसलिए है कि अल्लाह ने जलाने की ताकत दी है। अल्लाह तबारक व तआला ताकत दे तो मिले और छीन ले तो छीन जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाक़या सब वाज़ेह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग क्या हो गई? या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। बहरहाल मेरे भाई बात में खत्म कर रहा हूँ। खुलासे कलाम की बात यह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद एकदम खुल्लम खुल्ली दावत, बाप के लिए भी, कौम के लिए भी, हुकूमत के सामने भी ये बात साफ साफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहुंचा दी। और आप जानते हैं पूरा मंजर आपके सामने है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम की बुत परस्ती का खात्मा, तौहीद की दावत देने का एक तरीका ये भी है कि मुनाजरे से दुनिया के सामने हक की दावत को, तौहीद के नूर को आम कर दिया जाए और शिर्क और बुत परस्ती को पाश पाश कर दिया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो वाकया है ना, सूरह अनआम के अंदर सितारे को देखा, फिर कहा कि मेरा रब है, फिर वो जब डूब गया कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, है कि नहीं। चांद को देखा, कहा हादा रब्बी, ये मेरा रब है, और जब वो डूब गया तो क्या कहा? ए अल्लाह, अगर तूने मुझे हिदायत न दी तो मैं तो गुमराहों में से हो जाऊंगा। और उसके बाद सितारे, सूरज को देखा तो कहा हादा रब्बी हादा अकबर, ये मेरा रब है और ये तो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो क्या कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं, तुम मुशरिको, कौम के लोगों, तुम जिन के अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, मैं सबसे बरात का इजहार करता हूँ, सबका बाइकाट करता हूँ। मुझे कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों से जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला एक अल्लाह जो तमाम आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, मैं उसकी इबादत करने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तौहीद की दावत बहुत खुल करके है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तौहीद की दावत देने वाले ज्यादा थे या तौहीद की दावत जिनको दी जा रही थी उनकी तादाद ज्यादा थी? एक शख्स है तन्हा, पहले उसके पास हक का इल्म है अल्लाह की तरफ से। और ये जो वाकया है ना, सितारे और चांद और सूरज का वाकया, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को ढूंढ रहे थे। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं, बल्कि बाद उलमा भी कहते हैं, बाज खतीब किस्म के लोग जो है ना, वो इस तरह की बात करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को ढूंढा
तो इब्राहिम को अल्लाह मिल गया, तुम भी अल्लाह को ढूंढोगे तो इब्राहिम को जैसे अल्लाह मिल गया तुम्हें भी मिल जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने वही के जरिए से उनको नबूवत और रिसालत और खुल्लत अता फरमाई है। और कोई आलिम खतीब, कोई आम आदमी क्या कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को ढूंढ रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह को ढूंढना नहीं था, अल्लाह की मारिफत तो नबी से ज्यादा किसी को नहीं होती है, तो वो ढूंढ नहीं रहे थे। इस शिर्क करने वाली कौम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने थी ना, दो तरह के लोग थे, एक थे बुत बना बना करके पूजते थे और दूसरे लोग सूरज चाँद सितारों की पूजा करते थे। दोनों तरह के माबूदाने बातिला पाए जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों तरह के मुशरिकों को लाजवाब करने के लिए ये मुनाजरा किया, बुतों को तोड़ करके उसकी बेकसी बेबसी कमजोरी को खोल दिया उनके सामने। लेकिन सूरज चाँद सितारे भी तो हैं, उसको भी तो कमजोर साबित करना है कि नहीं साबित करना, कमजोर है, बेकस है। अल्लाह तबारक व तआला कमजोर बेकस नहीं है, और जो कमजोर और बेकस है उसकी इबादत नहीं हो सकती। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के सामने इनको सितारे, चांद और सूरज को कमजोर साबित करते थे कि इबादत के काबिल नहीं है। इसलिए ये बात उन्होंने बयान की। चांद सितारे को देखा तो डूब गया, तो कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता। कौम के सामने आ जाए कि डूबने वाला कभी माबूद नहीं हो सकता। चांद की बात आई और ज्यादा चमकीला, 7 सितारे हैं, 7 सूरज चांद, और उसके बाद ज़ुहरा, ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, अतारिद, ये 7 सितारे, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर कौन है, ये सूरज और चांद, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो ज़ुहरा है ना, इसी सितारे को ज़ुहरा कहा जाता है। बहरहाल मेरे भाइयों, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चांद को देख करके उसकी रोशनी, और उसके बाद कहा ये मेरा रब है, यानी कि हम तो कौम ऐसे ही उसको रब समझती है, रोशनी की बुनियाद पर उसको रब समझती है। लेकिन जब वो डूब गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अगर तूने मुझे हिदायत न दी तो मैं क्या हो जाऊंगा, गुमराहों में से हो जाऊंगा। कौम समझ ले कि इस चांद के पूजने वाले भी हिदायत पर नहीं है, ये भी गुमराही पर है। और सितारे के और चांद के बाद फिर सूरज की बारी आई, हादा रब्बी हादा अकबर, ये सबसे बड़ा है मेरा रब है। और जब वो डूब गया तो फिर तौहीद का ऐलान कर दिया कि ये कुछ भी माबूद होने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर अल्लाह ताला चलने की, इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी दावत तौहीद का एक आखिरी जो नुक्ता है वो ये है कि जहां तौहीद की दावत दी जाए, शिर्क की तरदीद की जाए, वहां मुशरिकीन की तरदीद हो, और शिर्क से बाइकाट हो तो मुशरिकीन से भी बाइकाट हो। कोई याराना, दोस्ताना, कुर्बत, मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रहे, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम, तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, उन पर ईमान लाने वालों की जिंदगी में क्या है, बेहतरीन उसवा है। जब उन्होंने कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे भी, और तुम जिनकी पूजा करते हो उनसे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे हमारी तुम्हारी दुश्मनी कभी खत्म होने वाली। तो यह है वला और बरा का अकीदा, ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत और दोस्ती, और शिर्क और कुफ्र और बिदात की बुनियाद पर नफरत और दुश्मनी, ये ईमान का हिस्सा है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, है ना? ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।